Hi guys, welcome back to my channel. So before starting the discussion, please do like, subscribe and share my video. So let's start the discussion for today. Today we are going to start class 7th history NCERT on chapter 1 tracing through 1000 years. Okay, so before starting the chapter, I would like to give you a small intro of class 7th history. Like we are going to study the timeline कि कैसे तुम्हें ये चैप्टर रीड करना है बिकॉज सबसे टफ होता है हिस्ट्री में ईयर से याद रखना. सो आई हैव मेड दिस टाइमलाइन फ्रॉम 750 to 1750 CE. So actually medieval in class 7th history we are going to study medieval history, and medieval history start from 750 CE to 1750 CE. So from 750 CE to 1000 CE there is a period called early medieval. So here early medieval is not so mentioned in your book. In then comes 1000 CE to 1200 CE, that is Rajput, and that is mentioned in your chapter 2. So about Rajputs and the contemporary rulers we are going to study in chapter 2. Then 1200 to 1206 there is no such information. Then 1206 to 1526 this is Delhi Sultanate, and Delhi Sultanate we are going to study in chapter 3. Then from 1526 to 1707 we are going to study Mughals, that we will conclude in chapter 4. And 1707 to 1750 CE we are going to study later Mughals, that will be that we will be studying in the chapter 10. So now doubt will be coming, like where are the other chapters? Chapter 1 we are going to study what are the sources of history, like what are the sources from which we get to know about the medieval history, like we have studied in class 6. And the other chapters are literally taking the reference to these chapters, like chapter 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 10 are the political history of your book. Rest chapters are just the like buildings, then like religious beliefs and all extra. Those chapters we are others. Political history will be concluding in these 4 chapters only. So let's start with the first chapter, historians and their sources, the first topic of chapter. So in this we are going to study like number of variety of textual records increases during the medieval history. Yes, इस टाइम पे बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के नंबर्स बढ़ गए थे और उन्होंने अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था. और इस टाइम पे क्या हुआ था कि पेपर भी बहुत चीप हो चुका था, तो इसलिए और भी ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. लाइक आप सोचिए कभी ऐसा टाइम हुआ करता था कि लाइक पेपर वॉज सो कॉस्टली, लाइक पेपर इज कॉस्टिंग यू 1000 rupees, so you will buy it less. When it will cost you rupees 10, so you will buy it more. So so इस टाइम में पेपर की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी बढ़ गई थी. और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, टेक्सचुअल तो रिकॉर्ड्स तो है, पर वो उसमें पढ़ते क्या थे लोग, लिखते क्या थे? व्हाट पीपल यूज टू राइट? तो पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, and then chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for religious accounts and texts. So these are the things which they used to write in the medieval history. So अब now next question comes is writing in what form, कि वो किस फॉर्म में लिखा करते थे. They used to write manuscripts, and manuscripts are copied by scribes. Actually there was no printing press at that time, so they were copied manually by men, and those men were called scribes. So note this point, the manuscripts were copied by the men, they were called scribes. Okay, now there were problem in this copying. What you think just कि आप अपने फ्रेंड से अपनी नोटबुक में होमवर्क कॉपी कर रहे हो, तो डू यू थिंक यू विल बी एक्यूरेटली नोटिंग एवरीथिंग? नो, नॉट एट ऑल. सो देयर वाज द प्रॉब्लम कि when they have written so many copies of the same manuscript, there were errors. Like some word is very confusing, so they used to replace it with another word. Like interpretation of a single word can differ from person to person. So there was such problem, and there was another problem कि if you are finding the copied one also, then there is a problem. Then you should find the original one, because in copied manuscripts there were so many changes, so you need to find the original manuscript. So now and it was rarely possible to find the original manuscript. For example, in your book is given Ziyauddin Barani. He is the chronicler of the that time, and his first chronicler was written in 1356. He wrote his first chronicle in 1356. The second one
2 years later after this. But it is very well known fact that his first version of chronicle was not known till 1971. So it was till 1971. So this is the problem. Like it till 1971 it was lost in libraries and archives. No one was knowing कि he has wrote 2 chronicles. So this was the problem of manuscripts copied by hand. Now another topic in your book is new and old terminologies. Yes, terminologies differ at that time. Actually terms can differ, meanings can differ same word with the time. It is not that their vocabulary or grammar changes, even the meaning of the word changes with time. In the book there are 2 examples given: Hindustan and foreigners. Hindustan was first interpreted by Minhaj-e-Siraz. He took it as the parts of dominion of Delhi Sultan, which covers areas of Punjab, Haryana and lands between Ganga and Jamna. Okay, so he used totally this word in political sense. Like if the dominion of Delhi Sultan increases, then the Hindustan words also increases the meaning. So meaning of Hindustan also increases it. So and on the another hand, it was also used by Amir Khusro. It was geographical and cultural entity in his sense. There was no political sense in his meaning. So there are 2 contrasting meanings of the same word. And another, it was also used by Babar. Babar used the same term for geography, fauna and culture of inhabitants of the subcontinent. So now here Hindustan has used been so very differently by different people, and now you know Hindustan is used for country India. So meaning of the word changes with time. And another word used example is for your foreigners. For example, if you consider today foreigner word, what do you mean by foreigner? Anyone not living in your own country, anyone came from outside or your country would be considered foreigners. But at that time, a person from the another city also was considered foreigner. Suppose you are living in Delhi and someone comes from Gurgaon, then he will be a foreigner for you from at that time, but not now. So the meaning of the word foreigner also has changed with time. Next we are going to study maps. In your book there are 2 maps given in the front page. सो आप लोगों को थोड़ा सा ये डाउट हो रहा होगा कि मैंने ये बीच में क्यों लिया. वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा NCERT में थोड़ा ऑर्डर गड़बड़ होते हैं और मैं फ्लो में पढ़ाना चाह रही थी. तो अभी हम मैप्स को डिस्कस करते हैं. आपके में 2 मैप्स दिए गए हैं. पहला जो मैप दिया हुआ है वो है अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने दिया हुआ है तुम्हारा पहला मैप. और वो एक्चुअली अगर आप अभी आप अपने पास बुक खोल सकते हैं तो ज़रा आप एक बार मैप खोल कर देख लें. वो एकदम वर्टिकली अपोजिट है और उसमें जो श्रीलंका है वो एकदम टॉप पे है. लाइक इट्स लाइक टोटली रिवर्स में हियर इज़ द श्रीलंका, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. और दूसरा मैप दिया गया आपको है, वो दिया है फ्रेंच कार्टोग्राफर ने. उनका नाम है एक्चुअली नाम इस थोड़ा टफ है, GUILLAMEDEISLE, गुलामे दी इसली. सो इसको आप ज़रा नोट कर लें. ये आपके एग्ज़ाम पूछा जा सकता है कि दोनों मैप किसने बनाए थे. ये इन्होंने बिल्कुल आज के मैप से सिमिलर बनाया हुआ है. और इसमें जो और जो तुम्हारा पहला मैप बनाया गया है अल इदरीसी ने, उसने सब कुछ अरब में मार्क किया हुआ है. उसमें काफ़ी सारी मार्किंग्स अगर आप ध्यान से बुक में देखें तो. और इन मैप में दोनों में इम्पोर्टेंस क्या है, लाइक व्हाई वी आर स्टडिंग दिस बोथ द मैप्स. इनमें कन्नौज के बारे में दिया हुआ है. लाइक दे हैव मार्क द कन्नौज वेरी सिग्निफिकेंटली, एंड कन्नौज की हमारी मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंस है. सो इसीलिए दोनों मैप्स इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग इन मैप्स को पढ़ रहे हैं. सो यहाँ हमारे मैप्स खत्म होते हैं. हम नया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. सो गाइज एक्चुअली मैं आपको एक बात कहना चाह रही थी. अगर आपको थोड़ी सी राइटिंग समझ ना आए तो प्लीज़ आप थोड़े से मेरे वर्ड्स से देख लीजिए. मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है तो मैं बता देती हूँ आपको उसको, और थोड़ी सी आपको हैंड राइटिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी. ओके, नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. इस टाइम पे क्या होता है, मिडिवल हिस्ट्री में हमारी फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से लैंड ग्रांट्स मिलने शुरू हो गए थे. लैंड ग्रांट्स क्या है? लैंड ग्रांट्स लाइक राजा ने किसी से खुश हो गए, किसी ने कोई अच्छी पेंटिंग बनाई, उसको एक लैंड ज़मीन का टुकड़ा दे दिया कि वहाँ पे तुम वहाँ के रिवेन्यू राइट्स तुम्हारे. तो दैट आर बेसिकली कॉल्ड लैंड ग्रांट्स.
और लैंड ग्रांट्स बढ़े उसमें से हमारा एग्रीकल्चर बढ़ता है। एग्रीकल्चर होगा तो डेफिनेटली हमारा इरिगेशन होगा ही होगा, इरिगेशन होगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो हमारा रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो अब ये हमने देखा कि ऐसे हमारी चेंज चलती है, तो इस वजह से हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी हमारे। तो अब हम इस टाइम पे हमारी न्यू टेक्नोलॉजी बहुत सारी इमर्ज हुई, जैसे पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। ये कॉम्बैट एक जगह का नाम है, वहाँ पे फायर आर्म्स मिले। फायर आर्म्स मतलब तोप। स्पिनिंग व्हील जिसे हम चरखा जिसे कहते हैं, और पर्शियन व्हील इज यूज फॉर इरिगेशन। सो दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट, दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड एट दिस टाइम फॉरेस्ट वॉज गेटिंग क्लियर। फॉरेस्ट क्लियर किया जाता है, क्यों फॉरेस्ट क्यों क्लियर किया जाता, ताकि एग्रीकल्चर एक्सटेंट हो सके, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और अगर फॉरेस्ट क्लियर करेंगे तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहाँ जाएंगे, उन बेचारों को तो माइग्रेट होना पड़ेगा, तो दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। इसमें माइग्रेट होकर वो क्या करेंगे, कुछ बेचारों ने क्या करा, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। लाइक अब उनके पास फॉरेस्ट में तो एक्सेस है नहीं, तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना अपनी लाइफ को जीने के लिए। सो दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर। सो इस वजह से हमारा क्या हुआ, न्यू पेजेंट ग्रुप इमर्ज। सो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है हमारा, एक सेकेंड, ये नहीं हो पा रहा ठीक, और ख़राब ही हो जाएगा लिखा हुआ हमारा। न्यू पीजेंट ग्रुप इमर्ज। अब नया पीजेंट ग्रुप इमर्ज होगा, तो अब इससे क्या होगा, ये लोग इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे रीजनल मार्केट्स को, चीफ्टेन्स को, प्रीस्ट को एंड मोनेस्ट्रीज को और टेम्पल्स को। इस वजह से क्या होगा, ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ना, ये इसका पार्ट बन जाएंगे। दे बिकम द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इस वजह से हमारा कास्ट सिस्टम इमर्ज होता है। एंड कास्ट सिस्टम में क्या, अब कास्ट सिस्टम इमर्ज हो गया, अब इसमें रैंक ऐसे ही नहीं फिक्स हो जाएंगी, रैंक्स वर नेवर फिक्स परमानेंटली, दे वेरीड अकॉर्डिंग टू पावर। अब आप ही सोचिए, अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, पावर होगी, वो डेफिनेटली कोई लोअर रैंक क्यों एक्सेप्ट करेगा, वो डेफिनेटली अपने हिसाब से रैंक्स को एडजस्ट कर देगा, तो और वो इस हिसाब से पावरफुल हो जाएगा। एंड इवन रैंक्स ऑन स्टेटस ऑफ जाति इज़ वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। जैसे एक जगह ब्राह्मण्स रिच हैं, एक जगह ब्राह्मण्स पुअर हैं, तो एक जगह उनकी जाति की वैल्यू ज़्यादा है और एक जगह उनकी जाति की वैल्यू कम है। तो इसी तरह से उस टाइम पे जाति की वैल्यूज़ भी जगह से जगह डिफरेंट। और अब भी जैसा भी कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ है, तो इसमें हमारे लोगों ने जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो भी इंडिविजुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए थे। एंड अब बड़ी बात यह है, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना लिए हैं, तो अब इनको इन्फोर्स कौन करेगा, अब नया सवाल। तो ये जो रूल्स थे, इनको इन्फोर्स करते थे हमारे असेंबली ऑफ एल्डर्स। तो हमारे असेंबली ऑफ एल्डर्स यानी जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे गांव के, उनकी एक असेंबली बना लिया करते थे और वो रूल्स को इन्फोर्स करते थे। एंड एट दिस टाइम विलेजेस वॉज स्टार्टेड गवर्निंग बाय द चीफ्टेन। सो विलेजेस वॉज स्टार्टिंग गेटिंग चीफ्टेन्स कौन हुए, जो बड़े बड़े लोग होते थे वही चीफ्टेन्स बन जाया करते थे। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स फ्रॉम 750 to 1750, ओके, यानी 1715। एक्चुअली दिस पीरियड वॉज ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। सो इस टाइम पे बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब। सो जब इस ये टाइम बहुत ग्रेट मोबिलिटी का था, तो ये इस टाइम को बहुत सारे लोगों ने एज अ अपॉर्चुनिटी भी यूज़ किया टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। सो ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनमें हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि राजपूत, सिख्स, मराठास, जाट्स, अहोम्स एंड एक्सेट्रा। सो देयर वर सो मैनी, सो we are just noting these many, these are important ones. So इस टाइम पे राजपूत भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे। राजपूत वर्ड एक्चुअली लिटरली डिराइव्ड है राजपुत्र से। राजपुत्र मीनिंग सन ऑफ अ रूलर, ओके। सो एक राजा का बेटा राजपूत, और उससे ही हमारा राजपूत डिराइव हुआ है। बट एक्चुअली ये 8th to 14th सेंचुरी के बीच में यूज़ किया जाता था वर्ड वॉरियर्स के लिए, जो कि क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो वॉरियर्स सिर्फ रूलर्स भी हों, इसमें सिर्फ नॉर्मल सोल्जर्स और कमांडर्स को भी क्षत्रिय जो होते थे उनको हम राजपूत कहा करते थे।
जैसे कि हम आज भी देखते हैं बहुत सारे लोग लाइक राजपूत बहुत ही बड़ी अच्छी कास्ट मानी जाती है। एंड राजपूत की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी चिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये क्या है, इसका मतलब है एक्सट्रीम वेलर एंड सेंस ऑफ लॉयलिटी। तो राजपूत जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेलर यानी बहादुरी, वो बहादुरी के लिए बहुत जाने जाते हैं। और सेंस ऑफ लॉयलिटी, वो बहुत ईमानदार होते हैं, उनके लिए झूठ नहीं बोलते। उनका लाइक हमने वो बाहुबली मूवी देखी है ना, शिवगामिनी देवी, मेरा वचन ही है शासन। तो राजपूत का भी वही वाला हिसाब था। तो दे वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड फॉर देयर ऑनेस्टी एंड देयर लॉयलिटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द राजपूत। नाउ इस टाइम पे हमारे बहुत सारे रीजन्स एंड एम्पायर्स भी डेवलप हो रहे थे, जैसे कि चोलास का एम्पायर इस टाइम पे डेवलप हुआ था, तुगलक्स का एम्पायर इस टाइम पे डेवलप हुआ था, मुगल्स का एम्पायर, और भी बहुत सारे लोगों का हुआ था। इसमें तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया है संस्कृत प्रशिष्टि का, जो कि प्रेस कर रही है गैसुद्दीन बलबन को। उसका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, वो फ्रॉम बंगाल इन ईस्ट से टू गजनी इन वेस्ट इतना फैला हुआ था। एंड वो उसने पूरा इंक्लूड किया था साउथ इंडिया को भी। तो इस टाइम पे बहुत सारी लैंग्वेजेस और हाँ तो सॉरी स्किप हाँ तो वी वर स्टडिंग द गैसुद्दीन बलबन। उसका एम्पायर बंगाल से लेकर गजनी तक था, उसमें साउथ इंडिया भी इंक्लूडेड था, और उसने बहुत सारे लोगों को हराया था, जैसे बहुत सारे रीजन से, जैसे कि गौड़ा, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और उन सबको इसने हराया था। उन सब ने इसके सामने हार मान ली थी। तो इसने बहुत ही बड़ा एक एम्पायर बनाया था। इस टाइम पे बहुत सारी तुम्हारी रीजन्स लैंग्वेज भी थी। अब इस टाइम पे हमारे एक पोइट थे जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है 1318 में। 1318 में एक पोइट थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। तो सॉरी बेयर माई हैंड राइटिंग। उन्होंने हमें बताया था कि उस टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती थी, एक रीजन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस मिल जाती थी। और उन्होंने एक और लैंग्वेज थी संस्कृत, ये किसी रीजन से एसोसिएटेड नहीं थी, ये बेसिकली ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी। कहीं के भी ब्राह्मण्स हो उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, नॉट लाइक कि उनका कोई स्पेसिफिक एरिया की लैंग्वेज थी ये। सो ये हमारा हो गया लैंग्वेजेस एंड रीजन्स के बारे में। इस फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पायर्स एंड किंगडम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइमलाइन। इस टाइम पे जो रीजन्स थे वो उनके डिफरेंट जोग्राफिकल डायमेंशंस थे, उनकी अपनी लैंग्वेज थी और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लेकिन एक और बात थी, ये स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। और अब आप ही सोचिए, एक राजा का राज्य है, अब ऐसे बहुत सारे राजा हैं, सबके अलग अलग राज्य हैं, लाइक हर कोई रीजन किसी न किसी राजा से एसोसिएटेड, किसी न किसी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। तो अब डेफिनेटली वो डायनेस्टी ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार इतना रीजन हमारा है, हम शांति से बैठेंगे इसमें खुश रहेंगे, नहीं, वो चाहेंगे अपना एरिया बढ़ाएं। तो इसी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज स्टेट्स वर वेरी कॉमन एट दैट टाइम। अब डेफिनेटली कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक थे, जैसे चोलाज, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स। इन्होंने अपने बहुत ही पैन रीजनल एम्पायर्स बनाए थे, जो कि पैन रीजनल का बेसिकली मतलब होता है बहुत बड़ा एम्पायर, लाइक स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। इन्होंने लिटरली बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए थे, जैसे कि हमने हमने तुगलक्स का पढ़ा था, सॉरी गैसुद्दीन बलबन, वो तुगलक नहीं है सॉरी, बट लाइक लिटरली तुगलक ने भी काफ़ी बड़ा एम्पायर था। मुगल्स का भी वेरी वेल नो कि अकबर वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर, उसने कितना बड़ा एम्पायर बनाया था। सो दीज आर द वेरी बिग एम्पायर, सो दे आर कॉल्ड पैन रीजनल एम्पायर। सो नोट दिस वर्ड, द मीनिंग ऑफ पैन रीजनल एम्पायर इज बेसिकली अ बिग एम्पायर। बट डेफिनेटली ये सारे इक्वली स्टेबल नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता, लाइक हर कोई सेम नहीं है। मुगल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे रूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तुगलक वेरी वीक, रूल फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। इनफैक्ट अगर आपको जानते हो तो तुगलक को हमारे हिस्ट्री में पगला राजा भी कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही ऐसे वो एक ऐसा रूल था, उससे बहुत ही ऐसे स्टेप्स लिए थे जो कि लिटरली एक नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता। और हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत ने उसका तुगलक का खिलजी के साथ कंपैरिजन। बट अभी तुगलक को एक पगला राजा भी कहा जाता है। अब
इक्वली स्टेबल नहीं थे। जैसे मुगल का भी एक टाइम पे डिक्लाइन हो गया था 18th सेंचुरी में, मुगल डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी। बट क्या था कि अब जैसे मुगल का डिक्लाइन हो गया, अब नए नए रीजन्स के आए रूलर्स, लेकिन जो इन्होंने मुगल्स की जो लेगेसी थी ना वो बाद में बहुत दिखी। उन्होंने अपनी एक लेगेसी छोड़ दी जो बाकी एम्पायर से बहुत देखने को दिखी। तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। सो बेसिकली इस तभी हम रिलीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये समझ ही आ गया है। उस टाइम पे क्या था, लोगों का एक बिलीव था डिवाइन पावर में, कि एक कोई असीम शक्ति है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं एंड ऑल। सो दे बिलीव इन डिवाइन। और ये डिवाइन बिलीव कहाँ कनेक्टेड था? ऑफन इट वॉज क्लोजली कनेक्टेड टू विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। सो इट वॉज कनेक्टेड विद द लोकल कम्युनिटी। लाइक अगर आप अपने आपके एरिया का कोई अलग भगवान होगा, किसी के दूसरे एरिया का कोई और अलग भगवान होगा, हिंदू कुछ और को पूज रहे होंगे, मुस्लिम किसी और को, तो ये ऑफन क्लोजली कनेक्टेड था उनके लोकल कम्युनिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन से। अब इस टाइम पे हिंदूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। जैसे नई डाइटीज़ का वर्शिप शुरू हो गया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल शुरू हो गया था। और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल कौन करता था? जो रूलर्स हुआ करते थे वो करते थे। और ब्राह्मण्स की भी इम्पोर्टेंस बहुत थी। क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज ऑफ वेदास की वजह से, उनको वेद की नॉलेज थी उस वजह से। और ये जो उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कंसोलिडेट हुई थी विद सपोर्ट ऑफ द पेट्रन्स, जो कि रूलर्स यूज्ड टू पेट्रोनाइज द ब्राह्मण्स for because they wanted to their dominant position constantly supported by their patrons. New rulers were searching for prestige, so they were searching for prestige, so they wanted that like they will patronize Brahmins, they will give importance to religion, so people will believe in them, people will consider them very important. So it was all about the Hinduism. Now next, there was also an emergence of idea of bhakti. Now what is actually the idea of bhakti? It is loving personal deity without the help of the priest. मतलब कि यहाँ पे ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस नहीं थी। We don't need any priest in between. We can directly contact to our God without any mediator in between. Now next we think about Muslim. Muslims के बारे में क्या है? Muslim used to consider Quran their holy book and the Allah their sovereignty accept of Allah, because they believe in one God. There is no other gods. Like in Hinduism there are so many gods, but Muslims believe in single God, that was Allah, and they used to believe in Quran, their holy book. Now they classifying of period were classified by Britishers and then by others also. Like from let's first see the classification of Britishers. They classify the period from origin to 750 as Hindus, as they were Hindu rulers at this time. From 750 CE to 1750 CE to Muslim, then 1750 CE onwards as Britishers, because they classified it as on the basis of rulers, but it is actually not correct, because at this time of Muslim, there were Hindu rulers as well. So this method is incorrect actually. So we did not accept this method. Now people use another classification. They classified as the origin to 750 as ancient, then medieval, then modern. But it has its own problems. Like in medieval has like modern period. We are calling it modern period. Actually, it was no modern period. It should be called colonial period. Because it has no modern changes. But in Muslim, in medieval period, there were so many economic changes. So it is actually we can get developed. There were so many development in medieval period, but there is no modern period in this. So it is always confused, because medieval is always contrasted with middle. So here we end the chapter, and we will meet you in another video of chapter 2.